अभी वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में हम सभी बाप दादा की याद में केक कटिंग करेंगे दादी जी के और सभी की उपस्थिति में। भाई लोग जल्दी लेके आ जाए, केक कटिंग करेंगे, दीप प्रज्वलन भी करेंगे, दूसरे भी। One God, one world family. One God, one world family. एक यही आवाज हर दिल से निकली, एक यही आवाज हर दिल से निकली। One God, one world family. One God, one world family. विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार है, एक पिता के हम सब बच्चे, ये अपना संसार है। One God, one world family. One God, one world family. मौसम आया है, मन का तराना लाया है। खुशियों का मौसम आया है, मन का तराना लाया है। दिल में भर कर उमंग के रंग, मन की महफिल में सजाया है। झूमती है दिशाएं, हवाएं गुनगुनाए, सात सुरों में गाए। महकती है फिजाएं, खुशियों का मौसम आया है, मन का तराना लाया है। खुशियों का मौसम आया है, मन का तराना लाया है।
शांति। अभी हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करती हूँ, डॉरती बहन जो न्यूयॉर्क से आई है, वो अपने शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं इस कार्यक्रम के प्रति देंगे। सिस्टर डॉरती फ्रॉम न्यूयॉर्क विल गिव हर ग्रीटिंग्स फॉर दिस प्रोग्राम। Om Shanti. Respected Dadi Janki Ji, Neverbai, Prime Minister Modi, Muniben, and all the guests, thank you for inviting me into your presence. I regret that I don't speak Hindi. मुझे नहीं हिंदी बोलती है। I was really inspired by Dadi Janki Ji and Prime Minister Modi that our thoughts need to be so elevated, and not just when we're in prayer or when we're in meditation, but to develop this habit of diminishing even ordinary thoughts. And I was thinking, I am from America, which is number one in political power, economic, and military, but it's only India that's number one in spiritual power, soul power. And that's the power that's eternal, that no one, no country can usurp, can overtake. And so as Brahma Kumaris, we develop our soul power, and that gets us through whatever we have to get through, because we are eternal, indestructible, and children of God. So as long as we have that connection with God, with the Supreme Soul, taking that power, taking that purity, and transmuting it into only elevated thoughts for each other, seeing the best in everyone, even if they're at one moment not showing their best, but to develop the vision, the drishti, to see the best in everyone so it emerges the very best in everyone. So I'm so happy to be here in this elevated company with the 80-year celebration of the Brahma Kumaris that transformed my life into a sublime life, a life like no other. And that was after being in the world of academia, media, and even the business world. And coming into the Brahma Kumaris was the best world. I thank you, Dhanyavad, 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 Bahut Dhanyavad. Thank you, Sister Dorothy. Now I request Brother Ernesto, who has all the way come from Mexico, to give his greetings for this program. Brother Ernesto. My daddy, my daddy, I'm so happy to be with you. You are my spiritual mother. And you are the responsible that all over the world, Brahma Kumaris is working. And Baba is being known all over the world. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. It's wonderful to be here. I just come from Mexico
and I witnessed something wonderful. Before I came, Sister Elena, which was the founder of Mexico, left the body, and was a wonderful ceremony. And after that event, my lucky father was also leaving the body. And we had a ceremony in the cathedral of the home state Chiapas, which in that state he was governor. And at the end of the ceremony in the cathedral, the main priest, when he saw me, he repeated the words Om Shanti. And at the end, he says, I learned 2 words from Ernesto when we were working for peace. And that 2 words were Om Shanti, which means I am a soul of peace. And he repeat again, the world needs peace now. Violence is all over the world. Then, like Ernesto says, and I learned from him, make everyone that is now here in this celebration to be Om Shanti, to be souls of peace. And in any space where you are, create peace, because the world needs peace. And at the end of the celebration in this Catholic church, he repeat, Om Shanti, Om Shanti. What I mean with this is that wherever Brahma Kumaris are, we are showing the world that there is a difference of way of living. And I am sure that each of you, in each space where you are making Bab Dada proud that we are creating a new world, that the world that he wanted is almost ready to go, is almost ready to begin. Then, my brothers and sisters, let's repeat again, and with our heart, again and again, let's say, Om Shanti, Om Shanti. Thank you, thank you, thank you. थैंक यू ब्रदर, थैंक यू ब्रदर अर्नेस्टो। अभी मैं निवेदन करूंगी भ्राता गुलाब कोठारी जी से, जो एडिटर इन चीफ राजस्थान पत्रिका के हैं। संक्षिप्त में आप अपनी ग्रीटिंग्स देंगे इस महान कार्यक्रम में। प्रातः स्मरणीय दादी जानकी जी, आपको और आपके संस्था के सभी सदस्यों को मैं हृदय से बधाई देता हूँ इस 80 वर्ष की यात्रा की पूर्णता पर। मुझे बहुत इस बात की प्रसन्नता है कि मुझे भी इस समारोह में आने का, उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ। और जब भी
दादी जानकी जी से मेरा संवाद हुआ तो निश्चित रूप से मुझे ये भी लगा कि मैं आज कहीं न कहीं अच्छे स्रोत के अंदर डुबकी लगाकर निकला हूँ। मैं संस्था का इसके लिए भी आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने मेरा इस समारोह में सम्मान किया। आज समारोह का विषय है ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण। और प्रश्न ये है कि रूपांतरण किसका हो सकता है। मैं अपना रूपांतरण कहाँ से शुरू करूँ, कैसे उसको समझ पाऊँ। मेरे पास शरीर है, माँ बाप ने दिया है, उसका रूपांतरण नहीं हो सकता। वह उम्र के साथ उसमें परिवर्तन आएगा पर वह दूसरा शरीर नहीं बन सकता। बुद्धि, मेरा मन, ये सब त्रिगुण के साथ आवृत हैं। इनका रूपांतरण नहीं हो सकता क्योंकि ये मेरे साधन हैं। तो शरीर, मन और बुद्धि तीनों मेरे साधन हैं। जो साधन है उनका रूपांतरण कभी नहीं हो सकता। रूपांतरण अगर होना है तो वो केवल आत्मा का होना है। और जब आत्मा का रूपांतरण होना है तब हमारे सामने एक नहीं अनेक प्रश्न खड़े हो जाते हैं कि इसको हम कहाँ से शुरू करें, कैसे अपने जीवन को देखना शुरू करें। जो व्यक्ति जहाँ से आता है या जो जीव या जो प्राणी जहाँ से आ रहा है वो वहीं जाकर लीन हो जाता है। ये हमारा एक सिद्धांत है। हम सूर्य को अपना आत्मा कहते हैं, सूर्य को जगत का पिता कहते हैं। तब क्या मेरा लक्ष्य वापस सूर्य में जाकर लीन होने का नहीं है। सूर्य इस सृष्टि का यज्ञ का स्वामी है और यज्ञ में अग्नि में सोम की आहुति होती है, उसी से नया निर्माण होता है, उसी से सृष्टि आगे बढ़ती है और सारा रूपांतरण इसी यज्ञ से हो सकता है। जहाँ यज्ञ नहीं है वहाँ रूपांतरण संभव नहीं है। सूर्य में जब परमेश्वर का सोम गिरता है तो यज्ञ होता है, वहाँ उसका पर्जन्य बन रहा है। सूर्य और चंद्रमा दोनों आपस में अग्नि और सोम के यज्ञ से ऋतुएं पैदा कर रहे हैं। पर्जन्य बरसात करता है इस पृथ्वी के ऊपर। बरसात सोम है, पृथ्वी अग्नि है। ये भी एक प्रकृति का यज्ञ हो रहा है। इस यज्ञ में अन्न पैदा होता है, वनस्पति पैदा होती है, औषधि पैदा होती है। औषधि, ये अन्न हमारे पेट में जा रहा है। हम इस अन्न से पोषित हो रहे हैं पर यह अन्न मेरे जठराग्नि में जा रहा है। तो ये सोम यहाँ फिर अग्नि में जाकर आहुत होता है। फिर एक नया यज्ञ प्रकृति के क्रम में शुरू हो रहा है। अन्न से शरीर के 7 धातु बनते हैं, रस, रक्त, मांस, मज्जा, और अंतिम में 7वां धातु शुक्र बनता है, वो खुद सोम होता है। अगला जो निर्माण है उसमें इस सोम की आहुति शोणित की अग्नि में होती है और जीव का निर्माण होता है, शरीर का निर्माण होता है। तो ये एक वैज्ञानिक तथ्य है कि सूर्य हमारा पिता है, हर जीव का, हर प्राणी का पिता है और हमारी सृष्टि वहीं से चल रही है और हमें वापस मूल में वहीं जाना है। तब रूपांतरण को इस छोटे से जीवन में कैसे लागू करें, उसके लिए रोज हम कई तरह के मार्ग पर चर्चा करते हैं। गीता में तो कृष्ण ने बहुत कुछ हमको मार्ग दिए हैं। ज्ञान योग दिया है, कर्म योग दिया है, भक्ति योग दिया है, बुद्धि योग दिया है। मगर उन सब में भी एक शर्त सब जगह है कि आपको आसक्ति से मुक्त होना पड़ेगा। आपको अपनी आत्मा का विस्तार करना पड़ेगा।
दूसरे आत्मा में अपनी आत्मा की शक्ल को देखना पड़ेगा। बंधुत्व का जो स्वरूप है, सेवा भाव से जो आप आत्मा में विस्तार कर रहे हैं, इसको यानी व्यक्ति भाव से निकलकर आपको समष्टि भाव में जीने का एक रास्ता पकड़ना पड़ेगा। जीवन में इसको हम बहुत नज़दीक से अगर देखें तो हमको ये समझ में आएगा कि निर्माण का रास्ते में एक ही तत्व है जहाँ शॉर्टकट भी नहीं है और संकल्प के बिना निर्माण भी नहीं है। एक बीज संकल्प है जीवन का और वही जीवन को विस्तार देता है, वही संकल्प बीज कहलाता है। लेकिन बीज को जब तक आप संभाल कर रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे, वो पेड़ नहीं बन पाएगा। देखिए निर्माण कहाँ आ रहा है, निर्माण की योग्यता क्या है, तो वसुधैव कुटुंबकम कहाँ से तैयार हो रहा है। बीज को संकल्प करना है कि मुझे अपने लिए नहीं जीना है। जब तक बीज फ्रिज में पड़ा रहेगा पेड़ नहीं बन सकता। उसे अपने अस्तित्व को मिटाने की तैयारी दिखानी पड़ेगी, उसे जमीन में गड़ जाने की तैयारी दिखानी पड़ेगी। और जिस दिन बीज जमीन में गड़ जाएगा, आप देखिए कुछ ही दिनों में वो पेड़ बन जाएगा। ये रूपांतरण का, ये वसुधैव कुटुंब का सबसे बड़ा कारण है, रास्ता है। क्योंकि बीज अपना फल कभी नहीं खाता। और कृष्ण भी कहते हैं कि आप अगर कर्म कर रहे हैं तो अपना फल उसको त्याग दें, उसकी इच्छा मन में नहीं रखें, यानी आपको वहाँ नहीं रहना है। तो बीज जमीन में अगर है, फल आएगा तब, बीज वहाँ नहीं होगा। और निश्चित रूप से ज्ञानी तो ये मान के ही चलता है कि अहम ब्रह्मास्मि ममेवंशो जीवलोके, तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत क्या है। दुनिया में कोई ऐसा धर्म आपको नहीं मिलेगा जो ये कहता हो कि ईश्वर एक है, हम सब ईश्वर की संतान हैं, सब एक संप्रदाय के रूप में विकसित हो रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं कि ममेवंशो जीवलोके। तो रूपांतरण अगर हमें सचमुच करना है तो हमें अपने आत्मा के धरातल से ही उठना पड़ेगा। और उसके जितने मार्ग हैं, शरीर से जुड़ने के, बुद्धि से जुड़ने के, मन से जुड़ने के, इन साधनों से जुड़ करके जीने के जितने मार्ग हैं, और वहाँ से व्यष्टि रूप में, समष्टि रूप में हम कैसे खुद को परिवर्तन कर पाएंगे। मेरे ख्याल से ये इतना बड़ा जो उदाहरण है हमारे सामने, ब्रह्म कुमारी ये विश्वविद्यालय का, मेरे को सचमुच नमन करते हैं हम बाबा को, जिनके पास इतनी दृष्टि थी, जो ये सोच पाए उस वक्त भी कि अगर कोई विस्तार देने का क्रम कर चाहिए, कहीं अगर कहीं निर्माण का रास्ता देना है विश्व को, अगर कहीं स्नेह, ममता और करुणा का रास्ता देना है, प्रेम का मार्ग लोगों को दिखाना है, तो वो केवल नारी शक्ति दिखा सकती है। इसको और गहरा आप घर में देख सकते हैं कि घर की सारी गतिविधियां किसके आगे पीछे चलती है। पुरुष के आगे पीछे नहीं चलेगी। नारी होगी, चाहे माँ हो, चाहे पत्नी हो, चाहे दादा दादी के रूप में जो भी घर की मुख्य नारी है, पूरी गतिविधियां, पूरी परंपराएं, पूरी संस्कृति उनके हाथ में होगी। बच्चों को, लड़का लड़की कोई हो, उसको भी अगर संस्कार देने हैं तो ये काम पिता नहीं करता, माता करती है। तब एक सुबह आदरणीय अडवाणी जी ने भी उदाहरण दिया था कि हमारे पास एक बहुत बड़ी संस्था है आरएसएस के नाम से। पर देखिए ये सामने उदाहरण, वो पुरुषों की संस्था है, ये मातृ प्रधान संस्था है, वो इतने सालों में भी इस देश से बाहर नहीं निकल पाई। और ये संस्था 130 से अधिक देशों तक अपना स्वरूप ये समझ प्रतिष्ठित कर चुकी है, वहाँ के लोगों को जोड़ चुकी है, वहाँ के लोगों में ये भाव, सेवा का भाव समझिए, संस्कारों का भाव समझिए, ये भरने का काम
करना शुरू कर दिया है। तो मैं इस अवसर पर मैं सिर्फ बाबा को नमन करना चाह रहा हूँ, जिन्होंने विश्व को ये समझा दिया कि क्यों भारतवर्ष नारी को शक्ति के रूप में मानता है। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देकर आपको पुनः धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद भ्राता गुलाब कोठारी जी का। अभी हम देखेंगे बहुत सुंदर नृत्य वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली बाय श्रीरंगम भरतनाट्यालय त्रिची एंड प्रेमालय नाट्य निकेतन चेन्नई। मैं अभी निवेदन करती हूँ इन कलाकारों को अपना नृत्य प्रस्तुत करने। One God, one world family. One God, one world family. एक यही आवाज हर दिल से निकली। एक यही आवाज हर दिल से निकली। One God, one world family. One God, one world family. विश्व एक परिवार है। विश्व एक परिवार है। एक पिता के हम सब बच्चे, ये अपना संसार है। वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली। वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली। सबको लेकर साथ चले, हाथ में देकर हाथ चले। सबको लेकर साथ चले, हाथ में देकर हाथ चले। प्रेम एकता पवित्रता, प्रेम एकता पवित्रता सुख शांति का आधार है। वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली। One God, one world family. सबका मालिक एक है, फिर कैसा मतभेद है। सबका मालिक एक है, फिर कैसा मतभेद है। एक बने हम, नेक बने हम। एक बने हम, नेक बने हम, समय की यही पुकार है। वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली। वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली। विश्व पिता का कहना है, मिलजुल कर हमें रहना है। विश्व पिता का कहना है, मिलजुल कर हमें रहना है। शुभकामना सद्भावना ही, शुभकामना सद्भावना ही विश्व शांति का द्वार है। वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली। One God, one world family. blessed glorious platinum jubilee, blessed glorious platinum jubilee, mangalmay ho platinum jubilee, mangalmay ho platinum jubilee, happy happy platinum jubilee, happy happy platinum jubilee. One God, one world family. One God, one world family.
Om Shanti. I am Revati Muthuswamy, Kalaimamani Revati Muthuswamy from Tamil Nadu, Tirchi, and she is my student Lata Aravindan from Chennai. They are all our students. We are extremely happy. We are very, very blessed to have our performance before you in this august audience, before this learned persons, divine persons. I am extremely happy and thankful to you all. Thank you so much. Om Shanti. हम धन्यवाद करते हैं। बहुत सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया है श्रीरंगम भरतनाट्यालय तिरची तथा प्रेमालय नाट्य निकेतन चेन्नई के बच्चों ने। अभी मैं निवेदन करती हूँ मिस्टर एस वेंकट नारायणन, प्रेसिडेंट फॉरेन करस्पॉन्डेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया इन इंडिया, अपने 2 शब्द हमारे सामने प्रस्तुत करने। भ्राता एस वेंकट नारायणन। Dadi ji and all the distinguished people on the stage and brothers and sisters who have come from all over India and also from all over the world. I understand that Brahma Kumaris functions in more than 130 countries, and it's wonderful to have our friends from different parts of the world. I have chosen to speak in English because I want them also to understand what I'm trying to say. Indians mostly bilingual, they can understand Hindi as well as English. Being a journalist, I'm not really equipped to speak at a spiritual conference like this, but I wish to give my compliments and congratulate this great institution on celebrating its 80th anniversary of founding. It's a delight to see so many people sitting quietly and watching all this. How I wish Indian Parliament and state assemblies could also maintain this kind of discipline and see that laws are passed. As our friend from Mexico said, we need peace in the world. And Brahma Kumaris is a fine example of that. The fact that the Prime Minister of India spends more than an hour talking to all of us through video conferencing, it shows the kind of importance Mr. Narendra Modi attaches to this. I am given to understand that he comes here very often and spends a lot of time. So that only shows how important Brahma Kumaris are doing and the work they are doing. I would like to see Brahma Kumaris spread their wings and see what they can do to bring peace in the world, particularly in countries like Syria, Iraq, Afghanistan, Pakistan, wherever there is unrest. I have absolutely no idea if there is anything that can be done, but it would be wonderful to see if Brahma Kumaris could explore the possibility of bringing peace to the world, particularly in regions where there is unrest. With these words, I wish to take your leave. Thanks very much, and join me in saying Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Thank you. धन्यवाद भ्राता एस वेंकट नारायण जी। अभी मैं निवेदन करती हूँ मिस्टर एन.के. सिंह जी, जो जनरल सेक्रेटरी है ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन का। Om Shanti.
देश के प्रधानमंत्री ने बहुत सारा काम दे दिया है इस संस्था को। मुझे लगता है कि अगले 10 साल तक हम लोग इस संस्था का हाथ मजबूत करें। अद्भुत संस्था है। मैं पिछले 15 साल से आता हूँ और हर बार जब इनके लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ तो अपने छोटेपन का एहसास होता है। एक अद्भुत क्वालिटी, एक संस्था है जो कि क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग चेंज कर रही है, नैतिक वैल्यू इन्फ्यूज कर रही है, स्पिरिचुअल वैल्यूज इन्फ्यूज कर रही है। और जब भी मैं इंटरेक्ट करता हूं तो लगता है कि हमें अभी एक जो आपका सामान्य बीके हैं, बहन या भाई, उनसे हम आत्मा के रूप में बहुत नीचे हैं और बहुत कुछ सीखना है। दरअसल हमारे आने का यही कार्य होता है। अद्भुत संस्था है और मेरे ख्याल से जो वॉइड इस दुनिया में क्रिएट हो रहा है मार्केट फोर्सेस की वजह से, वैल्यू का इरोजन हो रहा है और रिजल्टेंट आध्यात्मिक शक्तियों का इरोजन हो रहा है। अगर कोई एक संस्था उसे रोक सकती है, फिर से ला सकती है वापस, तो वो ब्रह्म कुमारीज है। एक मोदी जी ने नया कंसेप्ट दिया है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट अलोंग विद फिजिकल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जिसको कि हम पैरामीटर्स देखते हैं जो स्टेट एपरेटस से नहीं हो पाता, एक गैप होता है जिसको कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन फिल कर सकता है। मेरे ख्याल से वो जो काम आज आया है हम लोग के पास, बहुत बढ़िया ब्लेंड हो सकता है कि हम आध्यात्मिक इवैल्यूएशन करें लोगों का और वो डेवलप करने की कोशिश करें। साथ साथ ये जो डेवलपमेंट के काम उन्होंने कहे हैं, बिकॉज बोथ गो हैंड इन हैंड, देयर इज नो डाइकॉटमी बिटवीन द टू। तो एक अद्भुत मकाम है। और सबसे बड़ी जो हम जब इस संस्था को रीड करते हैं तो मुझे समझ में आता है कि इनके पास चैलेंजेस बहुत हैं। मार्केट फोर्सेस समाज को ट्रिवियलाइज कर रहा है, वैल्यूज को इरोड कर रहा है। ऐसे में इन संस्थाओं के लिए लड़ना, उनको न्यूट्रलाइज करना, फिर से वैल्यूज को इन्फ्यूज करना, और वो भी स्पिरिचुअल वैल्यूज, एक ऐसे समय में जहां कि आज माँ अपने पति से, पत्नी इस बात पे लड़ती है कि तुम्हारे पास बड़ी गाड़ी नहीं है, देखो पड़ोसी के पास बड़ी गाड़ी आ गई है। मार्केट फोर्सेस ने आपके कंजम्पशन पैटर्न को बदल दिया है। ऐसे में वैल्यू एजुकेशन देना, एक किसी को स्पिरिचुअलिज्म की तरफ ले जाना बहुत मुश्किल कार्य है। और मुझे लगता है कि ब्रह्म कुमारीज के लिए ये चैलेंज बहुत बड़ा है। हम सब लोग जो राइट थिंकिंग पीपुल हैं, अगर एक प्रतिज्ञा करें कि जीरो टॉलरेंस रखते हुए जो समाज की बुराइयां हैं, इस तरह की संस्थाओं को प्रमोट करें, और प्रमोट क्या करें, सीखें, इन संस्थाओं से सीखें, तो मेरे ख्याल से आने वाले दिन में ये भारत बदलेगा। और जो प्रधानमंत्री ने आज काम दिया है, ये लगभग इट इज इन सिंक विद दैट, इट इज इन कॉन्सोनेंस विद व्हाट स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इंटेल्स। तो मैं यही कहूँगा, बहुत कम वक्त है, कि ये एक बड़ा अच्छा मौका है कि इस संस्था को हम मार्केट फोर्सेस, जो आपका ऑनस्लॉट चल रहा है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि किस तरह अजीब सोशल रिलेशनशिप डेवलप कर रहा है, लिव इन रिलेशनशिप आपने देखा। बेंगलोर में डाइवोर्स के केसेस इतने हुए कि 3 नए कोर्ट्स बनाने पड़े ताकि डाइवोर्स के केस हैंडल हों। तो आज सबसे बड़ी जरूरत है कि जो ये वैल्यूज का इरोजन हो रहा है, एक चीज होती है अंग्रेजी में, एक रिलेशन होता है फीलियल रिलेशन, दिस इज अ रिलेशन बिटवीन मदर एंड सन और डॉटर, और फादर, रिलेशन बिटवीन फादर एंड हिज प्रोजेनियर। आप समझ सकते हैं कि फीलियल रिलेशन को भी ये खत्म करने जा रहे हैं। ये सिर्फ मार्केट फोर्सेस से हो रहा है ताकि वो आपको फॉसिलाइज्ड कर दें। दे वांट टू फॉसिलाइज योर थॉट प्रोसेस, ताकि अगर ये सोचेगा तो ये स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जा सकता है, वैल्यूज की तरफ जा सकता है। तो इसको सचिन का छक्का दिखाओ और राखी सावंत का डांस दिखाओ, इसी तरह के डांस दिखा के हल्के, ताकि वो सोच ना पाए। और नहीं सोचेगा तो हम जब उसको प्रचार करेंगे कि बड़ी गाड़ी कैसी होती है, कार, बहुत दूर तक कहेंगे, तो उसके मन में आएगा कि कार ही होना सेटिस्फैक्शन होता है। नतीजा ये हो रहा है कि आप जब उनके पास जाते हैं
तो वो रिजेक्ट कर देता है। वो समझता है कि नहीं, सेटिस्फैक्शन हमारा बड़ी कार में है, आध्यात्मिक इवोल्यूशन में नहीं है। तो ये चैलेंज इन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत बड़ा था, और मैं समझता हूं कि जिस तरह एक्सपेंशन ब्रह्म कुमारीज का हो रहा है, जिस तरह से रिकॉग्नाइज समाज में हो रहा है, वो दिन दूर नहीं है जबकि ये जो गैप आप देख रहे हैं, जिसमें कि आज हैप्पीनेस, सवेरे दादी ने कहा कि यूएनओ का एक नया इंडेक्स आया है, अभी 4 दिन पहले आया था, 2012 से आ रहा है, जिसमें कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स बनाते हैं, काउंट करते हैं, तो भारत में वो बुरी तरह कम हुआ है, जबकि जीडीपी हमारा बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है। तो क्या वजह है कि हमारा हैप्पीनेस कम हो रहा है? वो इसी वजह से कि हमें ये बताया जा रहा है कि तुम्हारे पास बड़ी कार नहीं है तो तुम बहुत कमजोर आदमी हो, तुम तो खत्म हो। तो हम बड़ी कार के लिए ज्यादा परेशान होते हैं, वो नहीं देखते कि हम अपने बच्चे को वैल्यू एजुकेशन दें। तो ये बहुत बड़ी चीज है आज की उपलब्धि, और हम कहें धन्यवाद देंगे मंच पे आसीन जो शीर्ष के इस संगठन के लोग हैं, और उतने ही मेहनत जो हमारे भाई बहन कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 5 साल में भारत की जो इरोजन हो रहा है वैल्यूज का, वो ये संस्था लगभग खत्म कर देगी। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद भ्राता एन.के. सिंह जी। अभी मैं निवेदन करती हूँ मिस्टर संजय कुलश्रेष्ठ जी, एडिटर इन चीफ न्यूज़ नेशन। पूजनीय दादी साहिबा, मंच पर उपस्थित विद्वज्जन और विशिष्टजन और साथियों, सुबह के सत्र में दादी साहिबा ने 2 मिनट का योग कराया। मैंने देखा कि जैसे ही आपने योग और ध्यान की मुद्रा में आप लोग आए, मैं थोड़ा लेट आया, मैंने आंखें थोड़ी बाद में बंद की, लेकिन आप सब ने आंखें बंद कर ली। उसी क्षण मुझे विचार आया कि जब आंखें बंद यानी दृश्य बंद, दृश्य गायब और मैं दृश्य माध्यम का आदमी, ये 2 विरोधाभासी चीज़ें मुझे बुलाया क्यों गया? क्योंकि यदि दृश्य आपके योग में, आपके अध्यात्म में, आपके चिंतन में, आपके विचारों में यदि बाधक है, तो टीवी माध्यम के आदमी को यहाँ नहीं बुलाया जाना चाहिए। और उस समय से इस समय तक सिर्फ मैं यही विचार करता रहा कि ये विरोधाभास को कैसे हम ख़त्म कर दें। ये भौतिक चीज़ें जो नज़र आती हैं और जिस चीज़ के आप एक्सपर्ट हैं, योग, विचार, आध्यात्म के जो एक्सपर्ट हैं, इन दोनों का कन्फ्लिक्ट ख़त्म कैसे हो जाए। जब मैं लोगों के बीच में घूमता हूँ, काफ़ी हद तक लोग कहते हैं कि आप लोग बहुत पॉजिटिविटी की बात करते हैं, लेकिन मुझे लोग कहते हैं कि इस समाज में जितनी नेगेटिविटी है उसका एक बहुत बड़ा हिस्से का कारण टीवी चैनल है। मुझे बड़ा दुख होता है, और तब मैं लगातार ये सोचता हूँ कि आपके योग को, आपके आध्यात्म को मैं टीवी चैनल के साथ जोड़ के कैसे इस समाज में पॉजिटिविटी के लिए कुछ जोड़ सकता हूँ। इसके लिए ये ज़रूरी है समझना। सुबह जब दादी साहिबा ने बोला कि आंखें बंद कर लें, विचारों में भूलते जाएं चीज़ों को, अपने अंदर की तरफ झांकें, ये भूलते जाने वाली जो फ्रेम्स हैं, ये फ्रेम्स मुझे भी खोजने होंगे टीवी पर कि ये कौन से फ्रेम्स हैं जिनको गायब कर दूं। इसके लिए जानना ज़रूरी है कि दिमाग काम कैसे करता है। आप में से बहुत जनों ने इस पर विचार ज़रूर किया होगा। बहुत विद्वज्जन यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने टीवी पर और फोटोग्राफी पे बड़ा काम किया है। ये दिमाग एक एक फ्रेम के ज़रिए इन्फॉर्मेशन लेता है, ये शायद आपको पता हो, और ये सारे फ्रेम्स एक दूसरे से कोरिलेट करके एक अर्थ बनाते हैं। वो अर्थ के छेड़छाड़ के मास्टर हम लोग हैं टीवी वाले। वो अर्थ का अनर्थ कैसे करें, इसके एक्सपर्ट्स हम हैं। एक एग्जांपल देता हूँ। 3 फ्रेम, हर जगह मैं बोला करता हूँ ये चीज़, 3 फ्रेम सोच लीजिए, 3 स्टिल फोटो। पहला फोटो एक लड़का, बीच का फोटो खाली, बीच में कुछ नहीं, और तीसरा फोटो एक लड़की।
ये बीच का एक लड़का एक लड़की, क्या मतलब? कोई बता पाएगा? ये दिमाग ऐसे नहीं बता बस। मैं खाली पूछूं एक लड़का, कोई मतलब नहीं। अकेले पूछूं एक लड़की, कोई मतलब नहीं। मैं पूछूं एक लड़का और एक लड़की, कुछ कुछ मतलब आने शुरू हुए, लेकिन तय नहीं है क्या। जो वो तीसरा फ्रेम है, जो वो बीच का जो खाली फ्रेम है, वो तय करेगा कि ये दोनों कौन हैं। मैं इस बीच वाले फ्रेम को भरता हूँ। पहला फ्रेम फ्लावर, फूल। पहला फ्रेम लड़का, बीच में फूल, फिर एक लड़की। अर्थ लगा सकते हैं आप। फूल को हटा करके मैं वहां रख देता हूं एक चाकू। लड़का, चाकू, लड़की। देखिए क्या अर्थ है। इस चाकू के साथ रख देता हूं सब्जी की टोकरी। लड़का, सब्जी की टोकरी, उसके साथ चाकू, लड़की। इसको हटा देता हूं, रख देता हूं बच्चा। कुछ भी रख सकता हूं, अर्थ बदलते रहेंगे। तो ये जो बीच वाला फ्रेम है, अर्थ और अनर्थ करने वाला ये फ्रेम है, ना कि पहला और दूसरा फ्रेम। इसलिए जो ये हमारी आंखें देखती हैं, ये आंखें अर्थ कैसे लगाती हैं? जो बीच के फ्रेम्स हैं। और ये बीच के फ्रेम यदि आप हटा देंगे तो ये टीवी चैनल भी योग जैसा हो जाएगा, जैसा कि आप लोग कर रहे हैं। तो वो जो नेगेटिविटी है, उस नेगेटिविटी के लिए गुलाब भाई साहब बैठे हुए हैं। मैंने आप ही के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की। आपकी एक पुस्तक है फोटोग्राफी पर, प्रेस फोटोग्राफी, फोटो पत्रकारिता। मेरे ख्याल से उस किताब की शुरुआत इस बात से है, 1001 फोटो 1000 शब्द के बराबर होती है। और उसके बावजूद भी अखबारों में कैप्शन देना पड़ता है। मोदी जी उद्घाटन करते हुए 5 अक्षर भी नहीं बता पा रही फोटो। टेलीविज़न ब्ला 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 करता रहता है, लेकिन हमें वो पिक्चर, सही तस्वीर नहीं दे पाती। जैसे आईना सच नहीं छिपाता, ऐसे कैमरा भी सच नहीं छिपाता। तो सबसे बड़ा झूठ का सारा पुलिंदा टीवी चैनल ही क्यों बने हुए हैं, यदि कैमरा सच दिखाता है? उसकी वजह यही है कि जो मैंने आपको बताया, चीज़ों को फिक्शनाइज करना, चाहे जीवन में, चाहे कैमरे पर, चाहे टीवी चैनल पर, चाहे अखबार में, इसमें हम सब मीडिया वालों को सोचना पड़ेगा कि ये जो खाली फ्रेम था, इस फ्रेम में हमें कौन सा फ्रेम डालें कि पॉजिटिविटी समाज में फैले। तो मैं समझता हूँ यहाँ आने से मुझे एक नई सोच मिली है। और आज के बाद मेरी कोशिश होगी कि टीवी के ज़रिए, टीवी न्यूज़ के ज़रिए कम से कम नेगेटिविटी बिल्कुल ख़त्म तो नहीं, लेकिन कम ज़रूर कर पाऊँ। ओम शांति। धन्यवाद भ्राता संजय कुल श्रेष्ठ जी। अभी मैं निवेदन करती हूँ हमारे टॉप मीडिया पर्सन्स का फेलिसिटेशन करने। रीडिंग ऑफ citation by B.K. Supriya and felicitation of Brother Venkat Narayan and N.K. Singh. We welcome all the media powerhouses in the 80th anniversary of Brahma Kumaris. We greatly appreciate you for your sincere and dedicated media services in promoting the true spirit of journalism. We sincerely acknowledge your significant role in informing, educating, and enlightening the masses about the various affairs of the world. We also felicitate you for your pragmatic contributions you have made for the welfare, development, and progress of the people and the country as a whole and the world at large, which are quite relevant and will go a long way in shaping the society and making the world a better place. Your useful works and activities in the world of media, which has been acclaimed as the fourth pillar of democracy, have been quite commendable, memorable, and worthy of respect and reverence. Let incorporeal Godfather, Supreme Soul Shiva, and angelic Pita Shri Brahma Baba, who is the corporeal founder of the Brahma Kumaris movement and the divine family of Brahma Kumaris, shower their blessings upon you for your long, healthy, happy, and blissful life. Thank you once again for being here.
दिव्य गुणों की प्रतिमूर्ति, नारी शक्ति का गौरव, आध्यात्म जगत के शिरोमणि, ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका आदरणीय दादी जानकी जी से हम फिर से सुनेंगे आशीर्वचन। एक बार जोरदार ताली से दादी जी का हम धन्यवाद भी करेंगे। आदरणीय दादी जानकी जी। ओम शांति। अभी बोलो ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, सारे ज्ञान योग का 21 साल में सारा 3 ओम शांति में मैं कौन, यंगुली, मैं कौन, मेरा कौन। सुना, मैं आत्मा हूँ ना, जो गीत सुना, जहाँ मेरा तन होगा वहाँ मेरा मन होगा। ये गीत सारे विश्व में 7:30 बजे बजता है। ये रचना परमात्मा बाप है, ये सारी रचना है। इतनी सुंदर से देख बाबा याद आता है बहुत। 80 साल ब्रह्मा बाबा का यादगार के रूप में हम सब इकट्ठे हुए हैं मिल कर के। मैं भी 80 साल से बाबा के साथ रही हूँ। 80 ईयर्स से बाबा के साथ। ताली बजाओ ना। जिस घड़ी बाबा यज्ञ रचा, लोक बाप भी जवारी था, बाबा भी जवारी था। 1 सेकंड में लोक बाबा से जैसे कि मैं ऐसी हूँ ही नहीं, ये मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। वो तभी से लेकर के त्याग, तपस्या और सेवा क्या है, इसका ऐसे कि बाबा ने बुद्धि में, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कर दिया जो दुनिया के सब संबंध से, 5 विकारों से, दे के संबंधों से मैंने कल परसों जानबूझ के वो बचपन को याद किया। असुर कोई याद नहीं आया, कोई मित्र संबंधी, मेरा माँ बाबा कोई याद। असुर कोशिश बहुत की जानबूझ के, कोई मेरा नहीं। मैं हूँ आत्मा, मेरा है, मेरा मेरा अंगुली ऊपर चली जाती है। परमपिता परमात्मा, जिसने परमपिता परमात्मा शिव ने ब्रह्मा बाबा के रथ द्वारा हम सबको पराया, पालना भी दी और यहाँ तक सेवा भी कराई। वंडरफुल बाबा मेरा है। जब बाबा अव्यक्त हुआ तो कोई हमारे मुख्य भाई बहने, उन्होंने कहा अभी कुछ करना चाहिए, तो कहा जानकी को जाकर बोलो, तो मेरे पास आए कुछ करना चाहिए। तो वंडर है ये बात का। सुबह को जयंती ने शायद बताया था, जयंती ने कुछ बोला था, तो कुछ मतलब जयंती को यहाँ भारत में अच्छा नहीं लगता था। उसको था मुझे विदेश में जाना है, तो भारत में भी इंग्लिश में कुछ भाषण किया तो सबको अच्छा लगा। तो कोई कहे भारत में रहे, कोई कहे विदेश में रहे। तो इसके माँ बाप वहाँ थे, तो मैंने कहा अच्छा ये मुझे विदेश में लेके जाए तो विदेश में यानी लंदन में पहले जाना हुआ। वंडर हुआ बाबा का। आज वहाँ की सेवाएं सारे विश्व में कोई कोना नहीं रहा है
जो जहाँ बाबा का मिशन न मिला हो। एनएसओ को पहला बाबा का बच्चा है, इतना खुश, इतनी मैंने एनएसओ वहाँ से निकला मैक्सिको से, वो जो इनको विदेशी देव बाबा का संदेश सुनते हैं, तो कल पहले वाले दादी प्रकाश मणि भी कहे, तो ये जो है ना विदेश में जन्म इसलिए लिया है बाबा का बनने के लिए। वंडर तो ये है। तो जो ऐसे डबल विदेशी कहते हैं हमेशा, वो जब भी आते हैं तो भारत में समझते हैं मेरा हमारा बाबा में। तो अभी आप भी मैं समझती हूँ, कहो मेरा बाबा, बोलो ना मेरा बाबा। मेरा नहीं बोलते, मीठा बाबा नहीं, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। ये सब हमारे बाबा के बच्चे, मेरे बाबा के बच्चे हैं ना, बच्चे हो ना, और बच्चे हो तो माया से बच गए ना। यहाँ बच्चा बनना माना माया 5 विकार है, जो नरक के द्वार है। बाबा का बनने से 5 विकारों से मुक्ति में हो गई। बाबा ने वस्त्र में दिया, हम कुमारी होने से बाबा ने कहा ब्रह्मा कुमारी, भले कोई भी है, भले माता है, परंतु कहेंगी मैं ब्रह्मा कुमारी हो। माता बना, मेरा बच्चे ना वो भगवान के हो गए। मेरा कोई नहीं, मेरा है तो एक परमपिता परमात्मा। तो मेरे से जब विदेश में गई, मेरे साथ शादी की है तुमने, मैं मुस्कुराया, शादी मैंने नहीं की है। तो पर फिर मैंने ऐसे कहा, ऐसे हाथ तो कहा कौन है वो? मैं दिलाराम है, वो दिलाराम है, मैं दिल लेने वाला है। बच्चे हैं 2, सुख शांति, वो सेवा कर रहे हैं, मैं फ्री हूँ। समझा मेरी बात को? तो सुख शांति अगर हमारे पास है, अभी मैं कहती हूँ धीरज बहुत है। यहाँ बैठो, धीरज से बैठो, धीरज है तो शांति है, प्रेम है, मुस्कुराना तो है। कोई बात मुश्किल नहीं जो हम कहे मुस्कुराना न हो। अपना बाबा ने अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया है। ये मुझे साकार बाबा ने डायरेक्ट, बाबा ने मुझे, बाबा का इधर था, मेरा इधर था, तो बाबा के कमरे में ऐसे ऐसे देखा, बाबा ने बुलाया, कहा बच्ची ये गीत गा रही हो ना, अपना बना के मुझे मुस्कुराना सिखा दिया, मुस्कुराना सिखा दिया। तो अभी आप भी ये लाइन गीत की याद रखना, बाबा ने अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया, कोई बात मुश्किल नहीं। तो उन वो दिनों को कितना 50 साल हो गया होगा, तो मैंने कभी नहीं कहेंगी ये बात मुश्किल है, सब सहज है। राजयोग सहज योग है, क्यों ज्ञान है न योग का। कोई प्राणायाम थोड़ा चलाते हैं, ना ना ना, क्या करते हैं, दिल सच्ची साहिब राजी, सच्ची दिल पर साहिब राजी है। तो मेरा साहिब है कौन? जो परमपिता परमात्मा, बाबा ने भी उसको अपना बना के इतनी रचना का निमित्त बन गया। ये कैसे बाबा के बच्चे इतने बड़े यज्ञ बाबा ने, बाबा हमारा ऊपर पांडव भवन है, ज्ञान सरोवर है। जब विदेशी पैदा हुए तो ज्ञान सरोवर बनाना पड़ा।
अभी तो देखो शांति वन में कितना बड़ा डायमंड हॉल भी छोटा हो गया है। अभी क्या करेंगे डायमंड हॉल को? डायमंड हॉल भी अभी बाहर में पता नहीं क्या क्या, कई लोग बाहर में ही बैठे रहते हैं। तो इसलिए बाबा के 80 सालों में हमने जो बाबा के संग में, संग का रंग जैसा संग वैसा रंग, जैसा हिम्मत बच्चे मदद बाप, ये सब प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा हुआ है जैसे मैंने कुछ नहीं किया, कराने वाला ने करा लिया। करावनहार कौन? वो है, करावनहार वो है, ऊपर वाला। ये सब बैठे हैं ना, इतने न्यारे सब वाले ने यहाँ बैठा दिया। वंडरफुल, खुशी से। हाँ हाँ, तो ये ओम शांति कहाँ से सीखे? मुझे और तो कुछ आता नहीं है, पर पवित्रता का बल, शांति का बल, और क्या है? क्या है हमारे? मैं कैसा अब आजकल कहती हूँ, धीरज होने के कारण मैं कभी भी कहाँ भी बैठेगी, ये करो ये करना हो जाए। हाथ ऐसे है। एक भाई ने अच्छे चित्र बनाया, यहाँ भी लगा हुआ है, तो ऐसा हाथ ऐसा है। सच्ची दिल पर साहब राजी, दिल को सच्चा रखना है। कोई भी ऐसा कर्म न हो जो कांध नीचे करना पड़े, तो कांध ऊपर अपमान वाला भी नहीं। निरंकारी रहना है, निर्विकारी निरंकारी, तभी रहेंगे जब ये क्या क्या क्या, मैं कौन मेरा कौन, मेरा ये भी नहीं है, मेरा ये भी नहीं है, कुछ मेरा नहीं है। न मेरे को सेंटर है, न मेरे को जोन है, कुछ मेरा नहीं है। मेरा एक बाबा जिसने 3 शक्तियाँ हर समय दी है, 3 शक्तियाँ हर समय यूज़ करने के लिए। एक शक्ति है सहन शक्ति, समझा? सबके काम की बात है। सहन शक्ति होने के कारण कभी भी अंदर से ये ठीक नहीं है, ये ऐसे नहीं है, ये शब्द नहीं निकलेगा। दूसरी बात है सहन शक्ति से संभालने की शक्ति और समेटने की शक्ति। बात को लंबा चौड़ा नहीं करना है, कुछ नहीं है, संभालना समेटना। ये 3 शक्तियाँ बाबा ने ऐसी दी है जो शांति से, प्रेम से सारे विश्व भर के बाबा के बच्चों को खींच के बाबा का बना लिया। थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का यह महान उद्घाटन सत्र में 101 साल पूरी करते हुए हमारी मुख्य प्रशासिका आदरणीय दादी जानकी जी ने बहुत सुंदर सौगात के रूप में आप सभी को, हम सभी को आशीर्वचन दिया। हर परिस्थिति में, हर पल में मुस्कुराना है, यही हमें दिल में समा कर ले जाना है। यही हमारी शुभकामना है, यही हमारी शुभ भावना है। अभी मैं निवेदन करती हूँ रशिया के संतोष बहन जी कमेंट्री देंगे मेडिटेशन का, और ऑस्ट्रेलिया के डेविड भाई म्यूजिक उसको ऐड करेंगे। तो हम सभी 3 मिनट पिता परमात्मा को भी धन्यवाद करेंगे। इस मेडिटेशन के साथ इस सत्र को यहाँ ही समाप्त करेंगे। ओम शांति। अभी जैसे भी आप बैठे रहे ऐसे ही, लेकिन थोड़ा मन में परमात्मा के प्रति प्यार महसूस करते हुए
ये इतनी सब बड़ी सभा, हम भगवान के सब बच्चे, आत्माएं, थोड़ी देर के लिए सब तरफ से अपने विचारों को समेटकर ऐसा संकल्प करते हैं कि हम सब कितने भाग्यवान हैं। आज हमें इस पवित्रता, शांति और प्रेम के वातावरण में बैठ शुभ विचार और शुभ बोलों को सुनने का मौका मिला है। ज्ञान आत्मा के लिए भोजन है, और जब हम सब ज्ञान को सुनकर अपने दिल में समाते हैं तो शांति और सुख की अनुभूति से आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। इस इतने सुंदर वातावरण को ईश्वरीय प्रेम की खुशबू से हम ही सजा सकते हैं। परमपिता परमात्मा कल्याणकारी शिव बाबा हमारे जीवन के सच्चे साथी हैं। उनकी ही दृष्टि को अपने ऊपर अनुभव करते हुए मैं उनकी संतान आज आत्मा को सब शक्तियों से भर सकती हूँ। आज ये विश्व सच्चे प्यार का भूखा है और मुझे अपने पिता से ये प्रेम स्वयं में भरकर अपने बोल और कर्म से, अपने वाइब्रेशन से सबको देना है। प्यार के सागर परमपिता परमात्मा की मैं संतान दुखों की आग को सिर्फ इसी तरह ही मिटा सकती हूँ। मैं ये प्रण करती हूँ कि समय प्रति समय कर्म करते हुए ऐसे ही शांति से बीच बीच में मैं अपने घर, आत्माओं की दुनिया और अपने पिता का अनुभव करने का हमेशा प्रयास करूंगी। ओम शांति। Om Shanti. I once again thank one and all who have participated in this historical event.
I thank even Brother Mrutyunjay for organizing this program and making this successful. Om Shanti, Dhanyavad. पूछो ना है कैसी मेरी माँ, एक सच्चे दोस्त जैसी माँ। पूछो ना है कैसी मेरी माँ, एक सच्चे दोस्त जैसी माँ। मेरे बदन में जान जैसी माँ, मिली मुझे किस्मत से ऐसी माँ। पूछो ना है कैसी मेरी माँ, एक सच्चे दोस्त जैसी माँ। मेरे बदन में जान जैसी माँ, मिली मुझे किस्मत से ऐसी माँ। मैं दिल हूँ एहसास वो, मैं दिल हूँ एहसास वो, मेरे दिल के पास वो। मुझे किसी का डर हो कैसा, मेरा तो विश्वास वो। गीता और कुरान जैसी माँ, मिली मुझे किस्मत से ऐसी माँ। अरे पूछो ना है कैसी मेरी माँ, एक सच्चे दोस्त जैसी माँ।